تو بتائیں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی سابقہ حیثیت بحال کر دی گئی ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور سیکریٹریز کے اختیارات بحال۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب کو صوبائی چیف سیکریٹری اور جنوبی پنجاب کے سیکریٹریز کو صوبائی سیکریٹریز کے اختیارات حاصل رہیں گے۔ گورنر پنجاب نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے بارے 29 اور 30 مارچ کے جاری نوٹیفیکیشنز بھی واپس لے لیے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی سابقہ حیثیت بحال کر دی گئی ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور سیکریٹریز کے اختیارات بحال کر دی گئے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب کو صوبائی چیف سیکریٹری اور جنوبی پنجاب کے سیکریٹریز کو صوبائی سیکریٹریز کے اختیارات حاصل رہیں گے۔ گورنر پنجاب نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے بارے 29 اور 30 مارچ کے جاری نوٹیفیکیشنز بھی واپس لے لیے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی سابقہ حیثیت بحال کر دی گئی۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور سیکریٹریز کے اختیارات بھی بحال کر دی گئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب کو صوبائی چیف سیکریٹری اور جنوبی پنجاب کے سیکریٹریز کو صوبائی سیکریٹریز کے اختیارات حاصل رہیں گے، جبکہ گورنر پنجاب نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے بارے 29 اور 30 مارچ کے جاری نوٹیفیکیشنز بھی واپس لے لیے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی سابقہ حیثیت بحال کر دی گئی ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور سیکریٹریز کے اختیارات بحال۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب کو صوبائی چیف سیکریٹری اور جنوبی پنجاب کے سیکریٹریز کو صوبائی سیکریٹریز کے اختیارات حاصل رہیں گے۔ مزید آپ کو اپڈیٹ کریں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ سے اختیارات کی واپسی کا معاملہ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے حوالے سے اہم پیغام۔ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے انکوائری کے احکامات دے دیے، ان کے علم میں لائے بغیر ایسا کیوں ہوا؟ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی اصل صورتحال بحال کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری ہونے سے غلط فہمی کا ازالہ ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ سے اختیارات کی واپسی کا معاملہ اور اسی حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا ہے، آپ بھی دیکھیے۔ کل سے ایک غلط فہمی نے جنم لیا تھا کہ جنوبی پنجاب کا جو سیکریٹریٹ ہے اور جو افسران کی تعیناتی تھی اور اختیارات تھے ان کو واپس لے لیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب نے اس کا فل فور نوٹس لیا اور انکوائری ہولڈ کر رہے ہیں کہ یہ ان کے احکامات کے بغیر کیوں ہوا اور کیسے ہوا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو اصل صورتحال تھی وہ بحال کر دی گئی ہے اور نئے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے اور اس نے جو غلط فہمی تھی اس کو دور کر دیا گیا ہے۔ تو جنوبی پنجاب کے جتنے ہمارے ممبران پارلیمنٹ ہیں، ممبران صوبائی اسمبلی ہیں اور جو کارکنان ہیں انہیں اطمینان کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کا جو جنوبی پنجاب کی عوام کے ساتھ وعدہ ہے کہ اختیارات کو نچلی سطح پر ڈیوالو کیا جائے گا، اس وعدے پر تحریک انصاف قائم ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھے گی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب میں کورونا کے وار تیز ہیں۔ ملتان میں 2 اور رحیم جار خان میں 1 شخص جاں بحق ہو گیا، جبکہ بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں ڈاکٹر محمد ظفر کورونا سے شہید ہوئے۔ ملتان میں 107 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ سرگودا میں 61 اور بہاول پور میں 47 افراد کورونا وائرس کا شکار ہوئے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ جنوبی پنجاب میں کورونا کے وار تیز، ملتان میں 2 اور رحیم یار خان میں 1 شخص جاں بحق۔ بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں ڈاکٹر محمد ظفر کورونا سے شہید۔ ملتان میں 107 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ سرگودا میں 61 اور بہاول پور میں 47 افراد کورونا وائرس کا شکار۔ ڈی جی خان میں 5 اور مظفر گڑھ میں 2 افراد کا ٹیسٹ پازیٹو آ گیا۔ بہاول پور میں 14 مریضوں نے کورونا وائرس کو شکست دے دی۔ ادھر کورونا نے تعلیمی اداروں کو نشانے پر رکھ لیا۔ رحیم یار خان کے 3 سرکاری اسکول میں کورونا کے 3 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ سر صادق کالج یونیورسٹی بہاول پور میں مزید 6 کیسز رپورٹ، 5 طالبات اور 1 فیکلٹی ممبر کا ٹیسٹ پازیٹو آیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے تمام پازیٹو افراد کو گھروں میں آئسولیٹ کر دیا۔ ملتان انتظامیہ ان ایکشن۔ کورونا خدشات کے بعد شام ڈھلتے ہی حسین آگاہی مارکیٹ بند کرا دی گئی۔ وسیم شہزاد رپورٹ کریں گے۔ یہ ملتان کی سب سے بڑی مارکیٹ حسین آگاہی ہے، جو شام 6 بجتے ہی ضلع انتظامیہ کی جانب سے بند کرا دی گئی ہے۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ 8 بجے تک کا وقت نہایت مناسب تھا، 6 بجے کے باعث انہیں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ سرکار ہمارے بھلے میں کر رہی ہے، سرکار ہمارے بھلے میں کری، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 6 بجنے میں 5 منٹ پہلے پولیس آگے بیٹھ جائے
पुलिस गुंडागर्दी करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस गुंडागर्दी करेगी तो फिर हालात खराब हो जाएंगे। चेयरमैन अंजुमन ताजरान जनूबी पंजाब शेख अकरम हकीम का कहना था कि हुकूमत 8 बजे तक का वक्त बहाल करे, वरना वो तमाम मार्केट्स को खुलवाने का इख्तियार रखते हैं। हुकूमत ताजरों की फरियाद पर नजरसानी करे। दुकानदार कस्टमर को नहीं भगाए, कस्टमर तो आएगा। अब 6 बजने में 10 मिनट पहले कस्टमर आता है, उसका मेरे पास कोई हल नहीं है, और मेरे पे कस्टमर आ रहा है तो मैं उसे भगा नहीं सकता। मैं कस्टमर को कैसे भगा सकता हूँ? अगर मैं कस्टमर को भगाऊंगा तो सेलमैन और वर्कर की तनख्वाह नहीं दे सकता मैं। लिहाजा मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करूंगा कि 8 बजे का कम से कम 8 बजे का टाइम कराएं। ताजरों का कहना था कि वो SOPs पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं। हुकूमत 8 बजे तक का वक्त बहाल करे ताकि हालात साजगार रहे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। मुल्तान में कोरोना के बढ़ते हुए खदशात, इंतजामिया इन एक्शन है, जबकि ACCT ख्वाजा मोहम्मद उमैर की निजी होटल के खिलाफ कार्रवाई। इंतजामिया की जानिब से सील किए गए होटल में दोबारा से काम जारी था, होटल को दोबारा सील कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है वसीम शहजाद। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कोरोना के बढ़ते हुए खदशात के बायस जो लॉकडाउन है उसके अंदर सख्ती जो है इस हवाले से देखी जा रही है, और जिले इंतजामिया इस हवाले से ज्यादा सरगर्म जो है वो भी दिखाई देती है। कल बंद होने वाले शेफ्स जो है वो आज उसको दोबारा से खोला गया, तो इस पर ACCT जो है वो यहाँ पर पहुंचे, इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो सील कर दिया गया। हमारे हमराही मौजूद है, क्या कहेंगे आप? जिले इंतजामिया की जो कार्रवाई है वो वाकई इस हवाले से काबिल तहसीन है, लेकिन एक चीज़ बंद होने के बाद इख्तियार कैसे दे दिया गया उसको कि वो दोबारा चल सके, और इस हवाले से अब आपकी क्या कार्रवाई होगी? were supposed to come present an affidavit to us and we were supposed to file an FIR against them, but हमें दोपहर को इतला मिली कि शायद इनका ये मूड नहीं है, और हमने आज शाम को जब सरप्राइज विजिट किया यहाँ पे तो हमने इसको जो है वो सील्स को तोड़ा हुआ पाया। उस हवाले से हमने जो है वो इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है उसका इनिशिएट कर दी है और दोबारा जो है वो इसको सील भी कर दिया। तो इस हवाले से आप फर्दर जो लोग हैं उनको क्या पैगाम देंगे, क्योंकि कोविड की सिचुएशन जो है वो इस हवाले से गवर्नमेंट भी काफ़ी इम्प्लीमेंट जो है वो करा रही है, लेकिन अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की बात कर लेते हैं तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, कोविड की सिचुएशन जो है पिछले कई दिनों से वी हैव सीन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड कम एवरी डे। उस हवाले से हमारी रिक्वेस्ट है हमारे शहरियों से कि हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो टाइम पे दुकानें बंद करें, SOPs को इम्प्लीमेंट करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, ताकि अपना इन्फेक्टिविटी रेट जो है इसको हम जीरो कर सकें। हमारे साथ ACCT मौजूद थे, जिनका इस हवाले से ये कहना था कि कार्य सरकार के अंदर जो है वो मुदाखलत के हवाले से किसी भी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि कोरोना से डरना नहीं लड़ना, और इसके लिए एहतियात जो है वो सबके लिए जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि जो गवर्नमेंट की जानिब से SOPs बनाए गए हैं उस पर अमल। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। जिला मुल्तान कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और 13 दुकानें सील, जबकि 26 बसों को बंद कर दिया गया है। मास्क ना पहनने और समाजी फासला बरकरार न रखने पर 1 लाख रुपए से जायद का जुर्माना भी किया गया है। कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुल्तान कैंट में 4, पीराकायब में 3 और शुजाबाद में 6 दुकानों को सील किया गया है। जिला इंतजामिया की जानिब से कोरोना से बचाव मुहिम भी जारी है। पब्लिक मकामात और जनरल बस स्टैंड पर कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर मबनी बिलबोर्ड और पैनाफ्लेक्स लगा दी गए हैं। बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनीज ने बस टर्मिनल्स के दाखिली दरवाजों पर सैनिटाइजर गेट नस्ब कर दिए हैं। जिला मुल्तान में इंडोर और आउटडोर शादियों के फंक्शन पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकूमती अहकामात की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत भी की गई है। हिमजार खान में गंदम की कटाई का मरहला शुरू हो चुका है। जिम्मेदारों की खुशी देती हैं। किसानों ने हुकूमत से गंदम की कीमत 2000 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। हिमजार खान में गंदम की फसल तैयार हो गई। जिम्मेदार जदीद मशीनरी मजदूरों और दरियांतियों के साथ कटाई के लिए पहुंच गए। किसान कहते हैं 6 माह की मेहनत के बाद ये मरहला आया है। कटाई के बाद गंदम की भरियां बनाई जाएंगी और फिर थ्रेशरें लगाई जाएंगी। जो नसीब में है वो ही मिलता है। जो हुकूमत है वो रेट सही नहीं दे रही। अभी 1800 दिया, सिंध में 2000 है। हुकूमत को चाहिए भी हमें भी 2000 रुपया दो, 1800 में खर्चा नहीं पूरा हो रहा। मजदूर कहते हैं कि जिम्मेदार 3 मन फी एकड़ गंदम मजदूरी में देते हैं। 2 मन दे देन अने बधो सी कपो सी ते 2 मन दे देन यो बधेनु कपेनु इने कट्ठी काटते देनु भला ये आपे थ्रेशर कढेन भला मजदूर लाते थ्रेशर काट देनु
ते भला जरा 2 मन दाने दे देन कटाई करते। जिम्मेदारों का कहना था कि रवां साल गंदम की फी एकड़ पैदावार 50 मन है। जल्द ही गंदम फरोख्त करने की तैयारियां भी शुरू कर दी जाएंगी। रवां साल गंदम की फी एकड़ पैदावार तो बेहतर रही, मगर हुकूमती रेट से किसान नाखुश दिखाई देते हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यासान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बता मियांवाली में ओपन पॉलिसी के तहत गंदम खरीदी जाएगी। फूड सेंटर 500 बोरी बारदाना और डीएफसी 1000 बोरी बारदाना जारी कर सकेंगे। अख्तर मजाज रिपोर्ट करेंगे। वाली महकमा फूड पंजाब ने गंदम खरीदारी बारे पॉलिसी जारी कर दी। डीएफसी मोहम्मद खालिद ने बताया कि बारदाना के हसूल के लिए दरख्वास्तें वसूल नहीं की जाएंगी। बारदाना के हवाले से ओपन पॉलिसी रखी गई है। जमींदार, फ्लोर मिल्स मालकान और मिडल मैन भी बारदाना हासिल कर सकता है। बारदाना ओपन है, वो इसलिए ओपन है कि पिछले सालों में शिकायत होती थी, जिम्मेदार कहते हैं हमें बारदाना नहीं मिलता, जो बाकी गंदम देने वाला है वो कहता है हमें बारदाना नहीं मिलता, इसलिए हमने बारदाने को ऑफर कर दिया है। उन्होंने बताया कि 1800 रुपए मन के हिसाब से फूड सेंटर गंदम खरीदेगा और 1800 रुपए रेट माजी की निस्बत बहुत ज्यादा रेट है। फूड सेंटर 10% नमी तक वाली गंदम खरीद करेगा। 10 अप्रैल से बाकायदा तौर पर गंदम खरीदारी का मरहला शुरू कर दिया जाएगा। 1800 रुपए रेट है, पिछले दौर से हमारा रेट बहुत ज्यादा है, जो आलमी मार्केट से रेट हमारा गंदम का ज्यादा है, जो बैनल कौमी मार्केट में गंदम का रेट है हम उससे बहुत आगे ज्यादा है। मियांवाली के लिए 6 लाख बोरी गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके तहत जुपला फूड सेंटर 1,50,000, मियांवाली 1,15,000, ईसा खेल 1 लाख, वाम भचरा 1 लाख, माड़ी इंडस 70,000 और समास मोड़ फूड सेंटर 65,000 बोरी गंदम खरीद करेगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। जनूबी पंजाब में आज से कपास की काश्त का आगाज हो चुका है। सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कपास के बीज काश्त कर दिए। जनूबी पंजाब के काश्तकार भी कपास की काश्त के लिए तैयार हो जाएं। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। 1 अप्रैल से सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में कपास की काश्त का आगाज हो गया। जनूबी पंजाब में कपास की काश्त का मौजू वक्त भी यही है। सरबराह एग्रोनॉमी CCRI ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बीज को जमीन में 1 इंच गहरा बोया जाए। कपास के बीज के दरमियान फासला 9 इंच होना चाहिए। पौधों में कतार से कतार का फासला 2.5 फुट होना चाहिए। बजाई जो है आपने ना जी 1 अप्रैल से, वैसे रिकमेंडेड टाइम इसका है 31 मई तक, लेकिन आपने ये नहीं देखना कि 31 मई तक जाना है, आपने मुकम्मल कर लेनी है 15 मई तक, क्योंकि आप जैसे जैसे लेट होंगे तो आपकी इससे ये है कि एक तो पैदावार कम होगी और दूसरा वायरस का हमला ज्यादा हो जाता है। डॉक्टर नवीद अफजल का कहना था कि जमीन की तैयारी के लिए लेजर लैंड लेवलर इंतहाई जरूरी है। लेजर लैंड लेवलर से पानी की 15% बचत मुमकिन होगी। लेवलर से खादों की भी 10% बचत होगी। उन्होंने कहा कि कपास के बीज को बिजाई से कबल जहर जरूर लगाएं। आपने इसमें लेजर लेवलिंग करनी है। इसकी अगर आप लेजर लेवलिंग करेंगे उसका आपको ये फायदा होगा कि आपने इसमें पानी लगाया वो एक जैसा लगेगा। इससे भी पानी की बचत है, इससे भी आपकी 15% पानी की बचत है, और आपने जो इनपुट्स दिए हैं, इसको खाद वाद दी है, वो भी एक जैसी लगेगी, और इससे भी खाद की भी बचत है तकरीबन 10%। रवां साल कपास की बेहतर पैदावार और काश्तकारों की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ वगाए प्रोग्राम भी जारी हैं। सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान की जानिब से 1 अप्रैल यानी कि आज के दिन से व्हाइट गोल्ड यानी कि कपास की जो बिजाई है वो शुरू कर दी गई है, और इस मामले में माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि रवां साल जो कपास की काश्त होगी वो बेहतरीन होगी। अब देखना यह है कि रवां साल जो कपास की काश्त है वो किस हद तक बेहतर होगी। कैमरामैन AD नवाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। माही सयाम की आमद से कबल डिवीजनल इंतजामिया ज़ख़ीरा अंदोज़ों की सरकूबी के लिए मुतहरिक हो गई है। मुल्तान डिवीजन में 23 रमज़ान बाजार लगाने का फैसला किया गया। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने डिवीजन के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को रमजान बाजारों में बेहतरीन इंतजामात का हुक्म दे दिया है। डिविजनल इंतजामिया ने गिना फरोशों और जखीरा अंदोजों की सरकोबी के लिए कमर कस ली है। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि 23 रमजान बाजारों में चीनी की बिलातातुल फराहमी के लिए ज्यादा से ज्यादा डीलर्स रजिस्टर्ड किए जाएं। हर डीलर मुकर्ररा रमजान बाजारों में बिलातातुल चीनी की फराहमी का जिम्मेदार होगा। रमजान बाजारों में वर्क फोर्स तैनात करके जखीरा अंदोजों पर कड़ी निगरानी की जाए। हर रमजान बाजार का फोकल पर्सन मुकर्रर किया जाए। गैर मियारी अशिया या किल्लत की सूरत में
रमजान बाजार का मुतल्लिका अफसर जिम्मेदार होगा। कमिश्नर ऑफिस अजला की इंतजामिया के दफातर में कंट्रोल रूम्स कायम किए जाएंगे। कमिश्नर का मजीद कहना था कि कोरोना SOPs पर अमल करवाया जाए, तमाम दुकानों पर रेट लिस्ट आवेजा करवाई जाए। वीडियो लिंक पर डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन, एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल भी मौजूद थे। मिडल मैन माफिया की सरकूबी के लिए हुकूमत पंजाब का अहम इकदाम, इंसाफ मोबाइल शॉप्स लगाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को 150 इंसाफ मोबाइल शॉप्स का टारगेट दे दिया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन की ज़ेर सदारत मोबाइल शॉप्स बारे वीडियो लिंक इजलास हुआ। कमिश्नर का कहना था कि शहरियों को रिलीफ देने के लिए जंगी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। इंसाफ मोबाइल शॉप्स पर मायारी अशियाए खौरनोश की फराहमी यकीनी बनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने बताया कि जिला मुल्तान में इंसाफ मोबाइल शॉप्स के इंतजाम मुकम्मल हैं। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर मोबाइल रिक्शों की ब्रांडिंग की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स की अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा, कीमतें कम न करने पर पीपल्स पार्टी ने एहतजाज का इंडिया दे दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद मलिक। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश और दीगर इस्तेमाल की अशिया महंगी कर दी गई। साबिक रुकन सूबाई असम्बली उस्मान भट्टी ने कहा कि माह रमजान से कबल अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा अवाम से जुल्म है। हुकूमत को गरीब अवाम की मुश्किलात से कोई दिलचस्पी नहीं। हम इस जुल्म के खिलाफ हर मुमकिन एहतजाज करेंगे। महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आ चुका है और गरीब आदमी बिल्कुल पिस कर रह गया है। इस वक्त आप यूटिलिटी स्टोर के ऊपर बात की जाती है कि वहां पर आटा, घी, चीनी, वहां पर चीनी का रेट बढ़ चुके हैं, ऑयल के रेट बढ़ चुके हैं, साबुन के रेट बढ़ चुके हैं, टूथपेस्ट के रेट बढ़ चुके हैं, इवन के दालें और तमाम जरूरत अशिया की चीजें 30 से 40% बढ़ चुकी हैं। साबिक MPA का मजीद कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश की कीमतें 30 से 40% तक बढ़ चुकी हैं। हुकूमत गरीब आवाम को रुला रही है। हुकूमत इखलाकी जवाब खो बैठी है। इनका कोई लाइन ऑफ डायरेक्शन नहीं है, इनका कोई ट्रैक नहीं है। ये आवाम को रिलीफ नहीं देना चाहते। ये लोग इस वक्त बाउंड हैं, इस अंदाज से बाउंड हैं कि ये लोग गरीबों को मारना चाहते हैं। साबिक रुकन सूबाई असम्बली उस्मान भट्टी ने कहा कि हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करके फौरी अवाम को रिलीफ देना चाहिए। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। चौक सर्वर में वादों की तकमील का सिलसिला जारी है। वजीर ममलकत मियां शबीर अली कुरैशी और साबिक चेयरमैन राना औरंगजेब अशरफ ने गैस रोड टफटाइल के मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वजीर ममलकत हाउसिंग एंड वर्क्स मियां शबीर अली कुरैशी की जानिब से वादों की तकमील का सिलसिला जारी है। उन्होंने गैस रोड टफ टाइल्स और सोलिंग के मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। मियां शबीर अली कुरैशी जब चौक सरवर शहीद पहुंचे तो आवाम ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर मियां शबीर अली कुरैशी का कहना था कि यहाँ की आवाम की मोहब्बत का हक अदा कर रहे हैं। चौक सरवर शहीद में करोड़ों रुपए के मनसूबे दिए गए, मजीद भी कोशिश कर रहे हैं। साबिक चेयरमैन राना औरंगजेब अशरफ का कहना था कि हम मियां शबीर अली कुरैशी के बेहद मशहूर हैं, जिन्होंने हमारी तकलीफों को मद्देनजर रखते हुए करोड़ों रुपए के मनसूबे मंजूर करवाए। मुल्तान के इलाके समीजाबाद का रिहायशी मुनीब गुज़श्ता 15 बरस से मासूरी का शिकार और हालात के सामने बेबस है। इंटर तक तालीम और कंप्यूटर कोर्स करने के बावजूद भी नौजवान को कहीं मुलाजमत न मिल सकी। सुहिरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के इलाके समीजाबाद का रिहायशी 24 साला मुनीब गुज़िश्ता 15 बरस से माजूरी का शिकार है। माजूरी के बावजूद इंटर तक तालीम हासिल की और कंप्यूटर कोर्स भी किया, मगर डिग्रियां किसी काम नहीं आ सकी। नौजवान का कहना है कि माजूरी की वजह से मेरी माँ ने बहुत मुश्किलात से लड़कर तालीम दिलवाई, मगर कहीं मुलाजमत नहीं मिल सकी। मैंने माजूरी के बावजूद तालीम हासिल की है। मैंने FA किया हुआ है, तो मैंने कंप्यूटर 1 साल का कंप्यूटर कोर्स भी किया हुआ है। तो मैं फारिग ही होता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मसरूफियत हो जाए, मुझे कहीं पर जॉब मिल जाए, कहीं पर मैं एडजस्ट हो जाऊँ। मुनीर की वालदा का कहना है कि इकलौता बेटा बीमार और माजूर है, घर में कोई कमाने वाला नहीं। शोहर मुलाजमत की घर से बैरून मुल्क गया, मगर 2 साल से रोजगार मिला ना ही वापस आना मुमकिन है। बेटे को अकेले संभालना मुश्किल हो गया है। इसके पापा 7 साल से बाहर हैं, वो हमारे साथ गवर्नमेंट कोई तावन नहीं कर रही। वो पाकिस्तान वापस उन्हें लाया जाए। और ये मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों डिसेबल हैं। ये तकरीबन 8 साल की उम्र में ऐसे डिसेबल हो गए थे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। मैंने इसे उठा के स्कूल से तालीम हासिल करवाई है और अब उसके बावजूद मैंने कहा इसको नौकरी मिल जाए और कहीं इनको जॉब नहीं मिल रही। माँ बेटे की हुकूमत से अपील है कि घर और अद्वियात का खर्च चलाने के लिए मुलाजमत दी जाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। भावलपुर के किडनी सेंटर में गुर्दों की पैवंदकारी गुज़श्ता 3 माह से बंद है। 40 ट्रांसप्लांट करने वाले किडनी सेंटर में ऑपरेशन क्यों किए गए? मज़ीद जानेंगे इस हवाले से अतहर लाशारी की इस रिपोर्ट में।
बहावल विक्टोरिया अस्पताल में कायम किडनी सेंटर में गुर्दों की मुफ्त पेमेंटकारी को 1 साल ही हुआ था कि ऑपरेशन बंद हो गए। जनूबी पंजाब समेत मुल्क के दीगर शहरों से आने वाले 40 मरीजों के किडनी ट्रांसप्लांट कामयाबी से हुए। अब गुज़श्ता 3 माह से ये सिलसिला बंद है। सरबराह किडनी सेंटर व प्रिंसिपल कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर शफकत अली तबस्सुम का कहना था कि रजिस्ट्रेशन की मियाद खत्म होने पर ऑपरेशन बंद किए गए। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी, उससे रजिस्ट्रेशन होती है। हमारे यूनिट की रजिस्ट्रेशन हुई थी 2 साल की, तो जब वो रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई तो फिर हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते थे। हमने फिर वो प्रोसेस रिन्यूअल का शुरू किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो रिन्यूअल हो गई है फोटा के साथ। डॉक्टर शफकत अली तबस्सुम ने बताया कि पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी की जानिब से दोबारा ट्रांसप्लांट की इजाजत मिल गई है। ट्रांसप्लांट के 3 मरीजों को ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। पेशेंट तैयार कर रहे हैं, उसमें भी डेफिनेटली टाइम लगता है। वो फाइल फोटा जाएगी, अप्रूवल होगी, तो 3 पेशेंट हमने तैयार कर लिए हैं। उनकी अप्रूवल 1-2 दिन में आ जाएगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में फिर ट्रांसप्लांट शुरू हो जाएंगे। किडनी सेंटर बहावलपुर लाहौर के बाद पंजाब का वाहिद सरकारी इदारा है जहां गुर्दों की पेमेंटकारी मुफ्त की जाती है, जिसकी वजह से गरीब मरीजों का रुख बहावलपुर की जानिब ही होता है। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ अतर लाशारी, बहावलपुर। कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज और बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 500 अहम असामियां खाली हैं। मरीजों के इलाज और तालीमी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना है। अतर लाशारी की रिपोर्ट। पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल बहावल विक्टोरिया और कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज में 15 से 20वें ग्रेड तक की सैकड़ों असामियां खाली हैं। कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर की 60 में से 34, एसोसिएट प्रोफेसर की 80 में से 48 और असिस्टेंट प्रोफेसर की 39 असामियां खाली हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर शफकत अली तबस्सुम का कहना था कि हुकूमत को मसले के हल के लिए लिख दिया गया है। हमारी जो सीटें तकरीबन 50% सीटें जो है ना वो खाली हैं। उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की हैं। तो डेफिनेटली उससे हर्ज तो होता है, टीचिंग पे भी होता है, पेशेंट मैनेजमेंट पे भी होता है। हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजी हुई है, डीवीएच साइड से भी भेजी है कि हमें मेडिकल ऑफिसर और स्टाफ नर्सेज की रिक्रूटमेंट की इजाजत दी जाए। बहावल विक्टोरिया अस्पताल की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं। मेडिकल और सीनियर मेडिकल ऑफिसर की 134, ग्रेड 19 के एपीएमओ की 45, ग्रेड 20 के प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर की 7 और ग्रेड 17 की हेड और चार्ज नर्सेज की 188 असामियां कई साल से खाली हैं। कुछ अरसे से हमारे पास मेडिकल ऑफिसर्स की और एसएमओज की, एपीएमओज की और पीएमओज की सीटें हमारी काफी सारी खाली पड़ी हैं। गवर्नमेंट ने कुछ अरसे से उस पर बैन लगाई हुई है। उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमें जल्दी इजाजत दे देगी, हम अठाक पे रख के इंशाल्लाह इस कमी को पूरा कर लेंगे। अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में मजबूरी तौर पर 500 डॉक्टरों की असामियां खाली हैं, जिसकी वजह से तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ इलाज मुआवजे में भी मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ अतर लाशारी, बहावलपुर। रहीम यार खान में रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी लगाई गई। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद ने साइलिन के मसाइल सुने। खुली कचहरी में मुख्तलिफ महकमों के 8 काउंटर्स भी बनाए गए। आसिम सदीक के हवाले से रिपोर्ट करेंगे। खान में रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी लगाई गई। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद, एडीसी जी शेख मोहम्मद ताहिर, असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान चौधरी और रियासत अली समेत मुख्तलिफ महकमों के ऑफिसरान शरीक हुए। साइलिन की दरखास्त पर फौरी अहकाम जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अवामी मसाइल हल करने के लिए ऑफिसरान भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तमाम हमारे जो एडीसीज हैं, हमारे एसीज हैं, वो भी अपनी अपनी जगहों पर ये ओपन कचहरी, लेकिन यहाँ पर रहीम यार खान में एडीसीज जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। और बेसिक इसका मकसद यही है कि लोगों को जो है हम वो जल्द अज जल्द जो है वो इंसाफ मुहैया कर सकें। खुली कचहरी में डोमिसाइल, रजिस्ट्री ब्रांच, रेवेन्यू, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और इराजी रिकॉर्ड सेंटर समेत मुख्तलिफ महकमों के 8 काउंटर बनाए गए। रेवेन्यू के हवाले से आज जितने भी मामलात हैं रेवेन्यू से रिलेटेड, पूरी हायरार्की फ्रॉम पटवारी टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सारे छत के नीचे मौजूद हैं और तमाम मामलात लोग कोशिश करते हैं कि लोगों के ये अंडर वन रूफ हल हो जाएं। खुली कचहरी में साइलिन और ऑफिसरान आमने सामने होते हैं। खुली कचहरियों के इनेकाद से शहरों के मसाइल हल होने में बड़ी मदद मिलती है। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। हाई कोर्ट मुल्तान बार में जजेस के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर हाई कोर्ट बार ने केसेस की जल्द सुनवाई के लिए जजेस की तादाद बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। माहिर इमरान रिपोर्ट करेंगे। कोर्ट बार मुल्तान में जजेस के एजाज में तकरीब मुनक्किद की गई। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर का कहना था कि वो भी मुल्तान बार में वकील रहे हैं। हमारी कोशिश है ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जल्द निपटाया जाए। अगर कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने भी वाली है तो उसे 1 या 2 हफ्तों के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए ताकि हम अपने आप को इधर से रीऑर्गेनाइज कर लें। नया जो साथी हमारे आ जाएंगे होपफुली ज्यादा भी होंगे और ताज़ा दम भी होंगे। सदर हाईकोर्ट बार सैयद रियाजुल हसन गिलानी का कहना था
कि मुल्तान बेंच में केसेस की तादाद बढ़ रही है। अगर जजेस की तादाद ना बढ़ाई गई तो हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। मुल्तान में 12 जजेस की जगह सिर्फ 5 तैनात हैं। 773 बेल पिटीशंस पेंडिंग है हमारे इस बेंच में। तो आज मैं सीनियर जज साहब से दरख्वास्त करूंगा इस फोरम के तवज्जुह से कि उन बेल पिटीशंस को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कर दिया जाए, ऐसी अदालतों में लगा दिया जाए जहां पे डिस्पोजल ज्यादा है। सरदार अहमद नईम साहब भी हमारे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, हमें बहुत खुशी है उनके आने पे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो एक बैकलॉग है ये दूर हो जाएगा। इस मौके पर मौजूद जजेस साहबान को बार की मेंबरशिप भी दी गई। तकरीब में जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस मोहम्मद वहीद खान, जस्टिस सादिक महमूद खुरम, जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर और बार ओहदेदारान समेत वकला की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरामैन एडी नवाज के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्संस के ज़ेर एहतमाम पहली बार पाकिस्तान में कस्टमाइज्ड व्हील चेयर मेकिंग का काम शुरू किया गया। पाकिस्तान बैतुल माल के ताउन से सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्संस ने 17 कस्टमाइज्ड व्हील चेयर बनाने का ऑर्डर मिल लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्संस के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान कस्टमाइज्ड व्हील चेयर सेंटर कायम किया गया है, जहां अफराद बहा माजूरी को व्हील चेयर मेकिंग, रिपेयरिंग और ट्रेनिंग दी जाती है। इस सेंटर में तैयार करदा व्हील चेयर पाकिस्तान भर के माजूर अफराद को इनकी जरूरत के मुताबिक मुफ्त फराहम की। व्हील चेयर होती थी, हमारी जरूरत को पूरा नहीं कर रही थी। और सबसे बड़ी बात यह कि इस व्हील चेयर की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये मेड इन पाकिस्तान है। इन व्हील चेयर पर मेड इन पाकिस्तान लिखा है और ये हमारा ख्वाब था कि हम अपने मुल्क में अपनी जरूरत की व्हील चेयर्स बनाएं। तो और इसको मैं जिन इदारों ने हमें सपोर्ट किया, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान बैतुल माल और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्संस ने सखर से आए ऑर्डर पर 17 कस्टमाइज व्हील चेयर्स तैयार की हैं। ये तमाम व्हील चेयर्स बनावट और साइज में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अपनी मदद आपके तहत जो एक दायरा बना था कस्टमाइज, आज पाकिस्तान बैतुल माल की नीड्स के मुताबिक ये सखर में ये 17 व्हील चेयर जा रही हैं और ये एक ड्रीम था, एक ख्वाब पूरा हुआ है कि एक व्हील चेयर दूसरी व्हील चेयर से मैच नहीं करती। वाकई ये कस्टमाइज व्हील चेयर्स हैं और ये बहुत जल्द पर्सन विद डिसेबल्स को मिल जाएंगी। खसूसी अफराद की हौसला अफजाई की जाए तो व्हील चेयर मेकिंग सेंटर को बढ़ाकर मजीद खसूसी अफराद को रोजगार फ्राहम किया जा सकता है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में 9वीं इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर एंड नैनो डिवाइसेस कॉन्फ्रेंस हुई। 14 मुकामी और बैनुल-अक़वामी साइंटिस्ट ने जदीद टेक्नोलॉजी की जरूरत और तहकीकात के बारे ऑनलाइन मुकाले पेश किए। आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में 9वीं इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर एंड नैनो डिवाइसेस कॉन्फ्रेंस हुई। इफ्तिताह चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर फजल अहमद खालिद ने ऑनलाइन किया। साइंटिस्ट का कहना था कि फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल में टेक्नोलॉजी सुकड़ती जा रही है, नैनो टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जरूरी है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर का कहना था कि कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से तहकीकात की नई राहें खुल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें यूएसए, चाइना, जापान, पूरी दुनिया से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। PHEC के चेयरमैन साहब ने इसकी इनागुरेशन की है और उन्होंने ऑनलाइन अपना ओपनिंग स्पीच भी दी है। सेमीकंडक्टर जो है ना, हर फील्ड ऑफ लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस है। साइंटिस्ट का कहना था कि तरक्की याफ्ता ममालिक टेक्नोलॉजी पार्क्स बना रहे हैं। फ्यूल टेक्नोलॉजी, केमिकल प्रोसेस, ऑटोमोबाइल्स टेक्नोलॉजी में तेजी से तरक्की हो रही है। टेक्नोलॉजी के सबर आजमा सफर के बाद अब नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ गामजन है। कोई भी फील्ड ले लें, मेडिकल का ले लें, स्पेस टेक्नोलॉजी ले लें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लें, हर एक में अब ये डिवाइसेस जो हैं ये यूज होंगे। कोशिश ये है कि कम से कम छोटे से छोटा डिवाइसेस बनाए जाएं। अभी है सिलिकॉन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, तो अभी हमें ना रिसर्च के रेफरेंस से अभी चीज़ों को सीखने की जरूरत है कि हम सीखें, उनको करें, खासतौर पर रिसर्च पाकिस्तान में करें और इंडिजिनस चीज़ों को डेवलप करें ताकि हम कम से कम इस एनर्जी क्राइसिस से निकल सके। सेमिनार के पहले रोज वाइस चांसलर मीर चाकर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद सलीम, चीन से प्रोफेसर बेनजो, प्रोफेसर यासीन, अमेरिका से प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली एहसान और प्रोफेसर डॉक्टर हसीना तबस्सुम ने तहकीकी मकाले पेश किए। पाकिस्तान में मुआशी तरक्की के लिए रिसर्च को फरोग देकर जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक से पाबंदी हटा दी। गैर इखलाकी मवाद अपलोड करने की इजाजत नहीं होगी। अदालती फैसले पर टिकटॉकर्स खुश हो गए। इब्राहिम खान रिपोर्ट करेंगे।
پشاور ہائی کورٹ نے ٹک ٹاک کھولنے کی اجازت دے دی، ساتھ ہی غیر اخلاقی مواد اپلوڈ نہ کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ عدالتی فیصلے پر ملتان کے ٹک ٹاکرز خوش ہو گئے۔ غلط مواد اپلوڈ کرنا یہ غلط بات ہے، یہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور بقایا جو ہے یہ نوجوان جتنی نسل ہے ان کے لیے مصروفیات کے لیے بہت اچھا مطلب واحد بنایا گیا۔ ٹک ٹاک پر پابندی ختم ہوتے ہی ٹک ٹاکرز نے جشن منایا۔ ملتان کے مشہور ٹک ٹاکر بابر علی نے ٹک ٹاک کھلنے پر پشاور ہائی کورٹ کا شکریہ ادا کیا۔ کہتے ہیں ٹک ٹاک سے لوگوں کو آگے آنے کا موقع ملتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ٹک ٹاک کو دوبارہ سے یوز کرنے کا موقع دیا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ٹک ٹاک سے روزگار بھی بنا ہوا ہے اور ماشاءاللہ مصروف بھی رہتے ہیں لوگ۔ ٹک ٹاکر چودھری علی کا کہنا تھا کہ ٹک ٹاک نہ صرف انٹرٹینمنٹ بلکہ آمدن کا بھی ذریعہ ہے۔ جو بھی لوگ غیر اخلاقی مواد اپلوڈ کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی اچھا اقدام ہوگا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر ماجد کلاسرا کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔